Hello and welcome everyone. Myself CMA Bhagyashree. Today we are going to continue our topic, that is illustrations of CMA Inter Syllabus 2022, in that financial accounting. In that we are solving questions of sole trading concern. Till question number 5 we have solved. Now we are going to solve illustration number 6. Mr. Abhay runs a small shop and deals in various goods. He has not been able to tally his trial balance and he has closed it by taking the difference into the suspense account. It is given below. So basically Mr. Abhay is a small shop ओनर. ओके, अभय जो है वो एक स्मॉल शॉप का ओनर है. उसने क्या किया है, ट्रायल बैलेंस बनाया है, वो टैली नहीं हो रहा था. ओके, तो उसने क्या किया, जो डिफरेंस है वो सस्पेंस अकाउंट को लिया हुआ है. ओके, सो this is a incorrect trial balance because it was not getting tally, so he has put the balance into the suspense account. ठीक है, I hope आपको इधर तक समझ में आया होगा. ओके, see, we will check the items. Okay, whether it is correct or not. See, Abhay's capital, drawings, fixed asset, opening stock, purchase and its return, sales and its return, due from customer. Okay, due from customer, it means debtor. Okay, and due to customer creditors. Okay, so ये क्या है, creditor का payment और ये है debtor का payment. Okay, debtor creditor. Okay, just remember that every time debtor should be on debit and creditor should be on credit. Okay, this is correct, no problem. Expenses are given cash. See, there is a problem. Cash is on credit side, cash is a real account, it should be on debit side. So I think there is a problem in cash. Okay, bank deposit and interest on. Okay, suspense account, 4,000 balance is there, we have to finish this balance. Okay, after that advertisement expenses is given. ठीक है, so there is a problem in trial balance, we will solve it. Mr. Abhay has requested you to help him in tallying his trial balance and also prepare the final account. So basically, first of all, we have to pass the rectification entry for tallying his trial balance, and then we are going to prepare the final account. Okay, on investigation of his books, you get the following information. So basically, which type of mistakes he has done in the books of accounts, they are given below. Okay, तो उसने क्या क्या मिस्टेक्स किया है, क्या क्या ट्रांजैक्शन हुए थे, कौन सी वजह है कि आपका सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस आ रहा है, वो सब कुछ आपको इस इन्फॉर्मेशन से मिलेगा. ओके, सो बेसिकली first of all we will start with this information only because this information give us rectification entry. After using that rectification entries in the final accounts, we are able to tally the final account. ठीक है, let's start. First of all, see, closing stock on 31st March 2022 was 45,000 at a cost and could sell over this value. Okay, this is not a problem, this is not an error, this is just adjustment. Okay, this information contains normal adjustment and rectification adjustments. Okay, इसमें normal adjustment भी है, गलतियाँ मतलब mistakes जो किया है वो है, जहाँ से हमको क्या मिलेगा, rectification entries. Okay, so ये जो फर्स्ट एंट्री है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो नॉर्मल अपना जो इफेक्ट आता है क्लोजिंग स्टॉक का वही आएगा. ओके, प्लीज रिमेंबर दैट व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. ओके, क्लोजिंग स्टॉक, ओके, ट्रेडिंग, क्रेडिट एंड बैलेंस शीट असेट. ओके, 45,000 क्लोजिंग स्टॉक. आई होप आपको ये याद हो रहा होगा. और यहाँ पे हम लोग एडजस्टमेंट देख रहे हो तो मिनिमम 2 इफेक्ट आएंगे. ओके, सो 2 इफेक्ट्स मिनिमम, मैक्सिमम हो सकते हैं. ओके, डेप्रिसिएशन ऑफ 13,500 नीड्स टू बी प्रोवाइडेड फॉर द ईयर. ओके, हाँ, तो अब ये डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है, ये भी नॉर्मल है. ओके, डेप्रिसिएशन में क्या करते हैं, लेस फ्रॉम असेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. ओके, लेस फ्रॉम असेट एंड प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट. ओके, first adjustment is, it was an independent adjustment, so there is no need to make any tick, but depreciation is a dependent adjustment. It means we are going to less from the assets, right? So we have to put a tick on asset. So where is the asset? See, fixed asset, put a tick so that you will take it in inner, otherwise you will make any mistake. ठीक है, सो यहाँ पे डेप्रिसिएशन का भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है. अभी थर्ड एंट्री जो है, आई मीन थर्ड इन्फॉर्मेशन, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ओके, सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थर्ड एडजस्टमेंट. ओके, बिकॉज दिस इज अ टफ एडजस्टमेंट इन दिस क्वेश्चन. एंटायर क्वेश्चन इज ईजी बट एक्सेप्ट दिस एडजस्टमेंट. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. अ विड्रॉल स्लिप इंडिकेट अ कैश विड्रॉवल ऑफ 15,000
विच वॉज चार्ज एज अ ड्रॉइंग. ओके, सो यहाँ पे हुआ क्या है, विड्रॉल स्लिप मीन्स यू आर विड्रॉइंग द कैश फ्रॉम द बैंक, राइट. 15,000 का कैश विड्रॉ हुआ है एक्चुअल में, बट ये चार्ज क्या हुआ, हम लोग ने रिकॉर्ड क्या किया एज अ ड्राइंग. ओके, सो प्रॉब्लम क्या हुआ है. ओके, वी हैव विड्रॉ द कैश. सो नॉर्मली एंट्री क्या आना चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. कैश इज कमिंग इन, बैंक इज गिविंग अस, बैंक इज अ गिवर, राइट. सो एंट्री शुड बी कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. दिस इज अ नॉर्मल एंट्री फॉर विड्रॉवल ऑफ अ कैश, बट दिस इज चार्ज टू द ड्राइंग. ओके, तो इन्होंने एंट्री क्या करके रखा है, कैश तो विड्रॉ हुआ है बट आपने डायरेक्टली उसको ड्राइंग दिखा दिया. ओके, चलो दिखा दिया, लेकिन आगे प्रॉब्लम क्या हुआ है देखो. However, it was noticed that 11,000 was used for the business purpose only. Okay, no doubt there is a drawing, but drawing is of only 4,000. Okay, 15,000 has been withdrawn from the bank. From that 11,000 is used for business purpose only. 15,000 में से 11,000 बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुआ है, तो ड्राइंग के लिए कितना हो जाएगा 4,000, बराबर. सो आपने 4,000 रिकॉर्ड करना चाहिए था, आपने डायरेक्ट 15,000 ड्राइंग में डाल दिया है. ओके, चलो वैसे भी रहता तो भी चल जाता, बट यहाँ पे क्या हुआ है, 11,000 बिजनेस पर्पस के लिए यूज हुआ है एंड वो आपने एक्सपेंसेस में डाल दिया है इन कैश बुक. ओके, सो टू बिग मिस्टेक्स ही हैज़ डन. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ही हैज़ विड्रॉ द कैश फ्रॉम द बैंक, बराबर. एंट्री क्या आना चाहिए था, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक. ओके, बट he thought that this 15,000 is for drawing. okay, so एंट्री क्या आना चाहिए था, फिर भी देखो ड्राइंग आपने दिखा दिया तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो गया, बराबर. ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो गया, प्रॉब्लम किस में हुआ, कैश में, बराबर. तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट करके कैश में आपने डाल दिया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश. बट एक्चुअल में हुआ क्या, 15,000 इज नॉट ड्राइंग अमाउंट. ओके, 11,000 इज फॉर बिजनेस पर्पज. बिजनेस पर्पज मीन्स एक्सपेंस. ओके, देखो एक्सपेंस में डाल दिया, ठीक है. दो मिस्टेक है. वी हैव मिस्टर अभय हैज़ विड्रॉन ओनली once, that is 15,000 amount he has withdrawn, and he has recorded twice. One is for drawing, another is for expenses. Okay, let's start passing the rectification entry so that you will get the final rectification entry. Okay, see, सबसे पहले हुआ क्या, केस वाइज हम लोग देखते हैं, ठीक है. देखो यहाँ पे मैं ये नंबर डाल रही हूँ ताकि आपको समझ में आएगा, ठीक है. ये ओके, so basically information number 3, okay, in the books of Mr. Abhay, these are the rectification entries, right. information 3 में फर्स्ट केस क्या हुआ, कैश विड्रॉवल. ओके, कैश विड्रॉवल. कैश विड्रॉवल में नॉर्मली एंट्री क्या आना चाहिए, ओके, कैश इज कमिंग इन, बैंक इज गिविंग अस, सो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट. ओके, दिस शुड बी नॉर्मल एंट्री. एक्चुअल में ऐसा ही हुआ, 15,000 कैश ही हैज़ विड्रॉन, बैंक हैज़ गिवन हिम 15,000. ओके, कैश विड्रॉल इज डन ओनली वंस, बट while recording the entries in the books he made 2 mistakes. Okay, so now we are going to pass wrong entry. Okay, wrong entry. What he did, first of all, this 15,000 he has recorded as a drawings. Okay, he has recorded as a drawings, and we know that drawing D, debit, always debit. Okay, drawings जब भी हम लोग रिकॉर्ड करते हैं तब ड्राइंग क्या हो जाता है, डेबिट. So drawing account debit 15,000 he did, okay, but actually 15,000 was not drawing amount. ठीक है, again his accountant means whoever is recording the accounts, again he recorded as a expenses. एक्चुअल में एक्सपेंसेस हुआ है 11,000 का, वो रिकॉर्ड कर दिया उसने. ठीक है, रिकॉर्ड करने वाले का प्रॉब्लम नहीं है, इन्फॉर्मेशन जो बताया उसकी गलती है. ठीक है, सो एक्चुअल में एक्सपेंसेस कितना रिकॉर्ड हुआ, जो एक्सपेंसेस हुआ था वही एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 11,000. ठीक है, नाउ ऑल दिस प्रॉब्लम्स आर नॉट मेड इन अ बैंक, दीज आर मेड इन अ कैश. ओके, ये जो प्रॉब्लम्स हुआ है वो बैंक में हुआ नहीं है, बैंक को पता है कि बैंक ने 15,000 दिया है. प्रॉब्लम किस में हुआ है, कैश में. ओके, ये सब गड़बड़ कैश बुक में हुआ है. ओके, सो यहाँ पे सब इफेक्ट चला गया कैश अकाउंट में. ठीक है,
आपको याद है ट्रायल बैलेंस में आपका कैश यहाँ पे निगेटिव जा रहा था, ओके। नॉर्मली कैश निगेटिव नहीं जाना चाहिए, ठीक है, इसी की वजह से कुछ हुआ है। तो टोटल देखते हैं 15,000 प्लस 11,000 इट इज़ 26,000, ओके। सी दिस इज़ द एक्चुअल ट्रांजेक्शन, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बराबर। बट ये जो 15,000 है वो कहाँ कहाँ एक्चुअल में यूज़ हुआ है, देखो 11,000 एक्चुअल में एक्सपेंसेस में यूज़ हुआ है और 4,000 ड्राइंग में यूज़ हुआ है, बराबर। 4,000 ड्राइंग शुड बी ऑफ 4,000, बट हियर बाय मिस्टेक ही हैज़ रिकॉर्डेड एज अ 15,000, अगेन ही हैज़ रिकॉर्डेड एक्सपेंसेस 11,000. These expense amount is correct, so don't touch it, okay. Problem is in drawings and problem is in cash, okay. Actual में we have cash of 15,000, right? We have cash of 15,000. See, we are having cash of rupees 15,000, right? Actual में हुआ क्या? Expenses we did of 11,000 and actual में we did drawing of only 4,000, okay. 4,000, but by mistake we have recorded as a 15,000, so we have to rectify it, right? Actual में we have withdrawn cash of rupees 15,000, but we are spending 26,000. Is it possible? आपके पास 15,000 का कैश है, आप कितना यूज़ कर रहे हो? 26,000. पॉसिबल है क्या? बैंक के केस में ओवरड्राफ्ट हो सकता है, लेकिन कैश में एक्स्ट्रा स्पेंडिंग पॉसिबल ही नहीं है। मतलब गड़बड़ किस में हुआ है? एक्सपेंसेस में कोई गड़बड़ नहीं है, ड्राइंग में गड़बड़ है और कैश में गड़बड़ है, ठीक है। चलो, तो अब भी क्या पास करते हैं हम लोग? रेक्टिफाइड एंट्री, ठीक है। चलो चेक करते किस किस में गड़बड़ हुआ है एक बार, ओके। सी, कैश गड़बड़ है, 15,000 26,000 नॉट पॉसिबल। मेरी सैलरी, सपोज मेरी सैलरी है 15,000, मैं 26,000 कैसे एक्सपेंस कर सकती हूँ अगर मेरे पास कैश ही नहीं है, बराबर। तो कैश में गड़बड़ है। बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैंक को पता है उसने क्या किया, 15,000 दे दिया, बात खत्म। सो देर इज़ नो प्रॉब्लम इन अ बैंक। हियर ड्राइंग्स ऑब्वियसली प्रॉब्लम है, ओके, कि बिकॉज आपका ड्राइंग का अमाउंट कितना है? ओनली 4,000, आपने रिकॉर्ड करके कितना रखा है? 15,000, बराबर, ओके। तो ड्राइंग में प्रॉब्लम है। देखो, ड्राइंग आपने किया है 4,000 का, रिकॉर्ड हुआ है 15,000, सो प्रॉब्लम डेबिट में हुआ है, राइट। तो हमको अगर उसको रेक्टिफाई करना है तो ड्राइंग्स क्या हो जाना चाहिए? एक्सेस ड्राइंग जो है वो क्रेडिट हो जाना चाहिए, ओके। 15,000 डेबिट है, बराबर, उसमें से 4,000 करेक्ट है। 15,000 में से 4,000 ड्राइंग हुआ है, तो इनकरेक्ट कितना है? इनकरेक्ट इज 11,000, सो ऑब्वियसली इनकरेक्ट नीचे जाएगा क्रेडिट में, ठीक है। एक्सपेंसेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक्सपेंसेस बराबर है, कैश में प्रॉब्लम है, ठीक है। कैश में देखो क्या हुआ है, आपने विड्रॉ कितना किया है? 15,000, बराबर, उसमें से अभी हिसाब लग गया ना, 15,000 में से एक्सपेंसेस 11,000, ओके, एंड ड्राइंग्स में एडजस्ट कर लिए हैं 4,000 के, ओके। एक्सेस कितना रिकॉर्ड हुआ है? ओके, देखो 26,000 कैश क्रेडिट, ओके, कैश क्रेडिट माइनस 15,000 कैश डेबिट, रॉन्ग कैश कितना है? 11,000 का, ओके। तो यहाँ पे आ जाएगा कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, थोड़ा सा ट्रिकी है, बट अगर आपका बेसिक्स क्लियर है, जो भी आपने जर्नल एंट्री सीखा है, तो आपके बेसिक में अगर कोई गड़बड़ नहीं है तो ये आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका फाइनल अल्टीमेट रेक्टिफाइड एंट्री जो हमको इफेक्ट देना है वो है आपका कैश अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, ओके, कैश अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स। सो बेसिकली यहाँ पे मैं इसका इफेक्ट लिख देती हूँ ताकि बाद में हमें याद रहेगा, ठीक है। कैश अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, कैश अकाउंट डेबिट मतलब कैश में क्या होगा? ऐड होगा कि लेस होगा? ओके, कैश में ऐड हो जाएगा क्योंकि कैश को डेबिट बैलेंस होता है, कैश में ऐड। एंड नाउ अबाउट ड्राइंग, ओके, ड्राइंग यहाँ पे क्या हुआ है? क्रेडिट हुआ है, ठीक है। देखो यहाँ पे जब भी आपको ड्राइंग दिखता है तो ड्राइंग हम लोग क्या करते हैं? कैपिटल में से माइनस करते हैं क्योंकि वो क्या होता है? डेबिट, ओके। यहाँ पे मैं टिक कर देती हूँ कैपिटल को, ये ड्राइंग हमें क्या करना है? माइनस करना है। ये ड्राइंग अलग है, वो ड्राइंग अलग है, ठीक है। नॉर्मली ड्राइंग इज माइनस, ओके, दिस इज माइनस फ्रॉम कैपिटल, राइट, बिकॉज दिस इज ऑन डेबिट साइड। बट ये तो उल्टा है ना, ये तो क्रेडिट में है, तो क्या हो जाएगा? ये ऐड हो जाएगा, ओके। ओके, तो ऐड करना है आपको,
ऐड करना है कैपिटल में, ठीक है। मतलब ये क्या हो जाएगा, कैश में ऐड, कैपिटल में ऐड। कैश में ऐड करोगे तो डेबिट इफेक्ट बनेगा, कैपिटल में ऐड करोगे तो क्रेडिट इफेक्ट बनेगा। ओके, ये बहुत डीप कॉन्सेप्ट है कि आप जब ऐड करते हो डेबिट होगा क्रेडिट होगा, ये आपको 11th-12th में आपको एक्चुअल में ये सीखना चाहिए, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे फाइनली ये थर्ड एडजस्टमेंट अपना हो चुका है। अभी नेक्स्ट जाते हैं हम लोग नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे। फोर्थ नंबर, वेरी सिंपल। ओके, गुड्स वर्थ ₹19,000 were purchased on 24th March 2022 and sold on 29th March 2022 for 23,750. Okay, sales were recorded correctly, there is no problem in sale, but purchase invoice was missed out. In short, purchase record नहीं हुआ है, सेल को हाथ लगाना ही नहीं है, परचेज को हाथ लगाना है। परचेज कौन से इस पे होता है, कॉस्ट पे होता है, राइट। तो 19,000 का इफेक्ट आएगा। परचेज रिकॉर्ड नहीं किया है तो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। ये है इंफॉर्मेशन नंबर 4, तो इसका एंट्री हम लोग यहाँ पे पास करते हैं। चलो, तो अनरिकॉर्डेड परचेस हेडिंग देंगे, अनरिकॉर्डेड परचेसेस, ठीक है। परचेस रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो करेंगे। परचेज को हमेशा क्या होता है पता है ना, डेबिट। सो एंट्री आ जाएगा परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स। ओके, सप्लायर्स मतलब क्या होता है, क्रेडिटर्स। सो परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। करना क्या है, परचेज बढ़ जाएगा, आपने परचेज रिकॉर्ड नहीं किया, वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड द परचेसेस, सो ऑब्वियसली ऐड इन परचेसेस, ओके, एंड ऐड इन क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स भी बढ़ जाएगा। ओके, बाय द वे मेरा यहाँ पे टिक करना बाकी रह गया है थर्ड एडजस्टमेंट का, कैश पे टिक और कैपिटल पे टिक, ठीक है। उसके बाद परचेज एंड क्रेडिटर्स, परचेज पे टिक एंड क्रेडिटर्स किधर गया, हाँ क्रेडिटर्स पे टिक। ओके, उसी के साथ साथ ये जो रिटर्न्स है इनके ऊपर भी टिक करना है हमको। रिटर्न्स क्या करते हैं हम लोग, परचेज में से माइनस और सेल का सेल में से माइनस, ठीक है। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चन देखे तो आपको ये टिक विक सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, परचेज रिटर्न ऑफ 1,500 वेयर रूटेड थ्रू द सेल्स रिटर्न। ओके, मतलब परचेज रिटर्न बाय मिस्टेक आपने सेल्स रिटर्न करके रिकॉर्ड किया है। ओके, बड़ी मिस्टेक है ये भी। उसके बाद पार्टी अकाउंट वॉज करेक्टली पोस्टेड। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ है, देर इज प्रॉब्लम इन अ परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट। पार्टी अकाउंट इज करेक्ट, ओके, सो वी विल एडजस्ट द परचेज रिटर्न एंड सेल्स रिटर्न अकाउंट, ठीक है। पार्टी अकाउंट को हाथ नहीं लगाना है। ओके, ऑब्वियसली in this case he has adjusted the amount through suspense account because party account is correct. okay, चलो तो देखते हैं हुआ क्या। यहीं पे पास करते हैं हम लोग। ओके, रेक्टिफाइड परचेज रिटर्न एंट्री, दिस इज फॉर योर रेफरेंस। ये जो हेडिंग हम लोग दे रहे हैं, ठीक है। चलो सोचते हैं कि हुआ क्या है। नॉर्मली देखो, ये है सेल्स रिटर्न, बराबर। सेल्स रिटर्न है, देखो सेल्स हमेशा क्रेडिट, सेल्स बैलेंस इज ऑलवेज क्रेडिट बैलेंस, ओके, बट इट्स अ रिटर्न इज ऑलवेज डेबिट बैलेंस। ओके, सो व्हाट ही हैज़ डन, ही हैज़ रिकॉर्डेड एज अ सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ओके, सो सेल्स रिटर्न उसने क्या किया है, डेबिट किया है, जो गलत है। ओके, आपको क्या रिकॉर्ड करना था, परचेज रिटर्न रिकॉर्ड करना था, जो क्रेडिट में आना चाहिए, बराबर। सो उसने किया क्या है, सेल्स रिटर्न, देखो उसने क्या किया है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट किया है, बराबर। पार्टी अकाउंट में प्रॉब्लम है ही नहीं। ओके, पार्टी अकाउंट तो सही गया है, बट सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट उसने कर दिया है, जो गलत है। तो आपको सेल्स रिटर्न को क्या करना चाहिए, क्रेडिट करना चाहिए। ओके, सेल्स रिटर्न को क्रेडिट, और परचेज रिटर्न तो हमेशा क्रेडिट में ही आता है ना, तो परचेज रिटर्न भी क्रेडिट हो जाएगा। और ये सब गड़बड़ कहाँ पे एडजस्ट करना है, सस्पेंस में। ओके, सो प्रॉब्लम देखो, प्रॉब्लम क्या है, ही हैज़ रिकॉर्डेड एज अ सेल्स रिटर्न बैलेंस इज डेबिट। ओके, so we have to cancel this debit, so obviously we are going to do the credit to the sales return account, right? So sales return account credit, while recording the purchase return it should be credited, so entry क्या आ जाएगा, suspense account debit to purchase return account to sales return account. Okay, suspense account debit to sales return account to purchase return account. Okay,
अमाउंट इज़ 1500, ओके 1500, ये कैंसिल करना है, ये रिकॉर्ड करना है, दोनों को मिला के सस्पेंस में कितना हुआ 3000, ओके। आई होप आपको ये रेक्टिफाइड परचेस एंट्री, परचेस रिटर्न एंट्री समझ में आ गई होगी। चलो तो यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, देखो सेल्स रिटर्न है उसको क्रेडिट करना है, देखो सेल्स रिटर्न है जिसका बैलेंस क्या है, डेबिट है, बराबर, उसको क्रेडिट करना है, तो यहाँ पे लिख के रखते हैं, ठीक है। सेल्स रिटर्न क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट एंड सस्पेंस डेबिट, ओके। जस्ट मैंने एंट्री लिख के रखा है, बाद में हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे। देखो सस्पेंस पे एक टिक आ गया, ठीक है। सेल्स रिटर्न एंड परचेस रिटर्न मतलब बेसिकली परचेस एंड सेल में ही एडजस्ट होने वाला है ना, तो इसको हम लोग टिक करके रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल बट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, if you are having the basics clear then you are able to solve this question properly. Next, expenses include 3750 related to the period after 31st March 2022. After 31st March 2022 it means after your year end. After your year end मतलब क्या होगा, वो प्रीपेड, और प्रीपेड क्या करते हैं हम लोग, एक्सपेंस में से माइनस और असेट, ओके। एक्सपेंसेस इंक्लूड रिलेटेड टू द पीरियड आफ्टर, आफ्टर मीन्स प्रीपेड, so minus from the expense and asset, okay। बट अभी रेक्टिफिकेशन कर ही रहे तो हम लोग एंट्री भी लिख के रखते हैं, ठीक है। 6 नंबर एंट्री, प्रीपेड का एंट्री कैसे करेंगे हम लोग, देखो प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 3750 टू एक्सपेंस, टू एक्सपेंस मतलब एक्सपेंस में से माइनस 3750। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। नेक्स्ट, ये तो बहुत सिंपल था। चलो एक्सपेंस में टिक तो करना पड़ेगा, एक्सपेंस टिक और असेट। परचेज बुक वॉज ओवरकास्ट बाय 1000, पोस्टिंग टू द सप्लायर अकाउंट इज करेक्ट, ओके। देयर इज अ प्रॉब्लम इन परचेसेस, ओवरकास्ट मीन्स यू हैव रिकॉर्डेड ओवर परचेसेस, जो एक्चुअल में है नहीं, आपने ज़्यादा दिखा दिया है। तो परचेस हमको क्या करना है, कम करना है, तो परचेस में से क्या करेंगे, माइनस, परचेस में से माइनस, ओके। और सप्लायर तो करेक्ट है, तो जाएगा कहाँ पे, सस्पेंस में, ओके, एंड सस्पेंस अकाउंट, ठीक है। चलो तो एंट्री क्या आ जाएगा, आ जाओ, रेक्टिफिकेशन एंट्री, परचेस बुक ओवर कास्ट, ठीक है। परचेज बुक ओवर कास्ट हुआ है, इसका एंट्री करना है, ठीक है। परचेज कम करना है, सस्पेंस में एडजस्ट करना है, तो ऑब्वियसली सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, ओके, टू परचेज अकाउंट 1000, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, टिक करना है, टिक करना है, परचेज में टिक करना है। बाप रे, परचेज पे कितना टिक हो रहा है, परचेज पे टिक और सस्पेंस पे टिक, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। लास्ट एडजस्टमेंट, एडवर्टाइजिंग विल बी यूजफुल फॉर जनरेटिंग अ रेवेन्यू फॉर 5 years, ओके। नॉर्मली ये जो एडजस्टमेंट होती है वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस हम लोग इसको बोल सकते हैं, बट यहाँ पे AS 26 के अकॉर्डिंग कुछ ये आपको याद रखना है इंफॉर्मेशन, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट का हम लोग लास्ट में रखेंगे, ठीक है। फिलहाल इसका सोचो मत, पहले हम लोग बाकी का कंप्लीट करेंगे, ओके। सो लेट्स स्टार्ट recording this trial balance, okay, trial balance. While recording the trial balance, if there are 2 ticks then leave 2 spaces, if there is no tick then leave it as it is, okay. 1 tick 1 space, okay. Let's start. So first item is Abhay capital 1,50,000, ठीक है। Abhay capital liability side we know that, okay. Inner 2 tick 1 2, ओके। एंड हाँ, लॉस एंड प्रॉफिट 1 स्पेस वी विल रिक्वायर्ड, ओके। ये प्रॉफिट एंड लॉस का
लॉस प्रॉफिट जो भी है वो एडजस्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा टिक आपको लगता है। चलो अभी कर देते हैं, ठीक है। अब है कैपिटल इनर, कैपिटल लाइबिलिटी साइड, देन ड्राइंग्स, वी नो दैट ड्राइंग लेस फ्रॉम कैपिटल, ओनली वन इफेक्ट, ट्रायल बैलेंस चल रहा है, वन इफेक्ट ही आएगा, ओके 75,000। सो माइनस ड्राइंग्स, नॉर्मल ड्राइंग्स दैट इज 75,000, ओके माइनस, so 1,50,000 minus 75,000, it is 75,000, done। next fixed asset 1,35,000, फिक्स्ड असेट पे एक ही टिक है, ठीक है। फिक्स्ड असेट्स इट्स 1,35,000 इनर, वन टिक वन स्पेस। नेक्स्ट opening stock, okay, we know that there is no tick, right, we know that opening stock trading debit to opening stock trading debit, no tick, outer, already we have discussed all these things in very basic starting questions, so please refer that if you are getting any confusion। next now परचेज पे अच्छे से देखो, 1 2 3 4 4 टिक है परचेज पे, ठीक है। चलो परचेज रिकॉर्ड करते हैं। purchases 6,75,000, 1 2 3 4, okay। now purchase done, but now this return, purchase return, we know that purchase return क्या होता है परचेस में से माइनस, ये नॉर्मल परचेस रिटर्न है, परचेस रिटर्न 13,500 माइनस 6,75,000 माइनस 13,500, इनर में ही रखना है 6,61,500, डन। चलो परचेज रिटर्न तक हो गया है। सेम वे में सेल्स, सेल्स 2 टिक इनर दैट इज 8,50,000। हाँ एक्चुअल में कैसे देना चाहिए था, रिटर्न पहले देना चाहिए था, बाद में सेल्स देना चाहिए था, ओके नॉर्मली, ताकि आपको समझ में आएगा कि ये रिटर्न का फर्स्ट अमाउंट है, ये सेल का अनदर अमाउंट है, ठीक है। चलो जाने दो, आपको उतना तो सब पता है ना कि सेल्स अमाउंट बड़ा होता है, तो ये सेल्स अमाउंट है और ये रिटर्न अमाउंट है। चलो सेल्स 8,50,000, 2 टिक्स, ओके। रिटर्न, सेल्स का रिटर्न 34,000 माइनस करना है, माइनस सेल्स रिटर्न 34,000 माइनस करना है। चलो 8,50,000 माइनस 34,000, 816, डन। नेक्स्ट इट्स वेरी सिंपल, ड्यू फ्रॉम कस्टमर इज अ डेटर, नो एडजस्टमेंट, डायरेक्ट आउटर, ठीक है। डेटर्स डायरेक्ट आउटर 95,000, I know it's not visible but try to understand it because it's very difficult to record the video and write into the notebook, so please try to understand this, okay। and one thing also I'm trying to explain you all the adjustment in detail, but face to face classes में जैसे होता है वैसे ये ऑनलाइन में नहीं पॉसिबल है। जितना पॉसिबल है मैं आपको बताना मतलब बता रही हूँ, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में आप पूछ सकते हो या फिर 2-3 बार आप वीडियो वापस सुन लेना तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आगे, देखो क्या बोला है। ड्यू टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को ड्यू है मतलब क्या है, देखो अमाउंट कितना है 3,25,000, क्रेडिटर्स को ड्यू है 3,25,000 का मतलब क्या है, लाइबिलिटी में जाएगा ना। चलो क्रेडिटर्स, और क्रेडिटर्स पे एक टिक दिख रहा है 3,25,000, एक टिक है तो एक जगह हमको छोड़नी है, ठीक है। आई होप ये समझ में आ रहा है आपको। चलो नेक्स्ट एक्सपेंसेस 45,750, एक्सपेंसेस पता है ना प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में जाता है, ओके। एक टिक है इनर में जाएगा, एक जगह छोड़नी है आपको, जो भी जीपी जीएल जो भी आएगा उसके लिए, ओके। सेकेंड लाइन पे एक्सपेंसेस इट्स 45,750, देन कैश, कैश पे भी एक एडजस्टमेंट है तो 3,000 आपको, देखो कैश
ऑलवेज असेट साइड, ओके, बट इट इन निगेटिव। कैश आपको क्रेडिट में दिया है तो निगेटिव में जाएगा। देखो कैश 3000 मैंने लिखा है बट उसको ब्रैकेट डाला है, मतलब वो निगेटिव है, ठीक है, इनर, ओके। देन नेक्स्ट, बैंक डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट अर्न। बैंक डिपॉजिट्स असेट, इंटरेस्ट अर्न प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, ठीक है। चलो बैंक डिपॉजिट्स असेट्स, बैंक डिपॉजिट्स 55,000 डायरेक्ट आउटर, नो एडजस्टमेंट, एंड इंटरेस्ट अर्न इट इज P&L, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, इंटरेस्ट अर्न कितना है 5750, नो एडजस्टमेंट आउटर, ठीक है। नाउ सस्पेंस अकाउंट, देखो अभी सस्पेंस अकाउंट दिख आ रहा है आपको, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में है, राइट। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, लायबिलिटी साइड में ले लेंगे, ओके। क्रेडिट है ना, तो लायबिलिटी साइड में लेके हम लोग इसको एडजस्ट करके ख़त्म करेंगे, ठीक है। चलो तो सस्पेंस, अगर डेबिट होता तो असेट में ले लेते हैं। सस्पेंस अकाउंट 4000, ठीक है, 2 टिक दिख रहा है तो 1 2, ठीक है। नेक्स्ट एडवर्टाइजमेंट, ओके। अब ये एडवर्टाइजमेंट का जो आपको मुझे बताना है मैं अभी आपको बता देती हूँ। You will get note regarding this advertisement in your study material answer, but I am just telling you orally. Advertisement normally they are giving us adjustment that advertisement will be useful for generating revenue for 5 years, okay. So basically this advertisement expenses will be useful for next 5 years. Normally it is called as deferred revenue expenses, but as per AS 26, okay, expenses incurred on intangible asset, ओके, इंटेंजिबल असेट, उसके ऊपर अगर आपने कुछ एक्सपेंसेस किया है, डू नॉट मीट द डेफिनेशन ऑफ असेट, उसको हम लोग असेट नहीं बोल सकते, ठीक है। देखो एडवर्टाइजमेंट आपने किया है मतलब आपने सर्विस लिया है, राइट। सर्विस लिया है वो भी प्रीपेड, मतलब एडवांस में आपने पेमेंट किया है, तो वो क्या हुआ, इंटेंजिबल असेट। बट इंटेंजिबल असेट इज नॉट कवर इन द डेफिनेशन ऑफ असेट एज पर AS 26, ओके। एंड हेंस फुल अमाउंट ऑफ दिस एडवर्टाइजमेंट विल चार्ज टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये पूरा का पूरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस में ही जाएगा, आपको उसको ईयर्स में डिवाइड करके और कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में डालना है, ठीक है। बस इतना ही उसका एडजस्टमेंट है और कुछ नहीं है, ठीक है। सो एडवर्टाइजमेंट ये डेबिट है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट में जाएगा। मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, स्पेस कम है। एडवर्टाइजमेंट 2 लाख, ठीक है, डन। तो यहाँ पे आपका ट्रायल बैलेंस हो गया है ख़त्म। अभी एक एक एडजस्टमेंट लेना है हमको और उसका रिकॉर्डिंग करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक वेरी सिंपल, ट्रेडिंग क्रेडिट, बैलेंस शीट, असेट 45,000, ठीक है। चलो फटाफट रिकॉर्ड करते हैं। क्लोजिंग स्टॉक, ट्रेडिंग क्रेडिट एंड बैलेंस शीट के असेट में क्लोजिंग स्टॉक 45,000, okay, done. First adjustment is completed. Second adjustment is depreciation of 13,500 needs to be provided for the year. Normally depreciation हम लोग क्या करते हैं, less from asset and profit and loss debit, okay. Let's do first of all 13,500 less from asset minus depreciation, only one adjustment. So अभी adjustment होने के बाद ये सीधा जाएगा आउटर में, 1,21,500 and profit and loss account debit, depreciation 13,500, डन। दो इफेक्ट अपना हो रहा है, एडजस्टमेंट हो रहा है, ख़त्म। अभी चलते हैं नेक्स्ट पे, थर्ड। इसका मैंने डायरेक्ट आपको सब समझा दिया है कि हुआ है क्या। 15,000 उसने विड्रॉ किया था, ओके, ही हैज़ विड्रॉन 15,000 बाय मिस्टेक, ही हैज़ रिकॉर्डेड ट्वाइस, one as a drawing, 15,000 as a drawing and 11,000 as expenses. After adjusting all these things we came to know that entry, okay, entry हम लोग ने क्या डिसाइड किया था, कैश अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स, ओके। बट यहाँ पे मैंने इफेक्ट लिखा है, कैश अकाउंट डेबिट मीन्स कैश में ऐड हो जाएगा 11,000 जो रॉन्ग है, और ड्राइंग भी 11,000 है जो रॉन्ग है, मतलब कैपिटल में भी ऐड हो जाएगा। बाय मिस्टेक आपने ड्राइंग्स ज़्यादा दिखा है, ओके। सो बेसिकली ऐड इन कैश, ऐड इन कैपिटल, 11,000 एवरीथिंग इज डिस्कस एंड सब कुछ समझा दिया है आपको। ऐड
रॉन्ग ड्राइंग्स, ठीक है। ऐड करना है 11,000 जो रॉन्ग हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 86,000। उसके बाद कैश में भी ऐड रॉन्ग ड्राइंग्स या फिर एक्सपेंस व्हाटएवर, रॉन्गली आपने जो रिकॉर्ड किया था, या फिर रॉन्ग अमाउंट भी आप लिख सकते हो। कितना ऐड करना है 11,000। तो अपना देखो हुआ है क्या, 3,000 ऑलरेडी निगेटिव में है क्योंकि वो क्रेडिट में दिया था। अभी देखो ऐड करना है आपको, तो कितना हो जाएगा 8,000। आई होप यू आर गेटिंग मी नाउ। नेक्स्ट फोर्थ एडजस्टमेंट, गुड्स वर्थ ₹19,000 वेयर परचेस। हाँ, परचेस किया था और वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था, सेल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ये सिंपल है। परचेस में ऐड, क्रेडिटर में ऐड 19,000। ओके, जो सिंपल है उस पर टाइम पास नहीं करेंगे। आ जाओ, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेसेस, ऐड करेंगे 19,000, 6,61,500 प्लस 19। ऐड क्रेडिटर्स में भी ऐड होने वाला है, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेसेस, डन। 3,25,000 प्लस 19,000, 3,44,000, डन। इट वॉज वेरी सिंपल एडजस्टमेंट। नाउ नेक्स्ट, हाँ दिस परचेस रिटर्न वाला। ओके, यहाँ पे मैंने इसका डायरेक्ट एंट्री लिख दिया था, ठीक है। परचेस रिटर्न 1,500, बाय मिस्टेक सेल्स रिटर्न दिखा दिया है, बराबर। तो हमको एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले देखो, सस्पेंस अकाउंट डेबिट चाहिए तो आप जर्नल एंट्री चेक करो जो मैंने पहले किया है। देखो अमाउंट कैसा है, 1,500 हियर, 1,500 हियर, एंड सस्पेंस में कितना है 3,000, राइट। पहले सस्पेंस को देखते हैं। सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट में है, उसको हमको क्या करना है, डेबिट। ओके, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा ना। देखो माइनस सेल्स रिटर्न एंड परचेस रिटर्न का एंट्री, बराबर। उन दोनों को मिला के कितना अमाउंट माइनस करना है, 3,000। आपको ये अभी समझ में आना चाहिए। सस्पेंस क्रेडिट में दिया है तो उसको क्रेडिट बैलेंस है। अभी हम लोग ने एंट्री में सस्पेंस को डेबिट किया है, सस्पेंस डेबिट मीन्स माइनस। So 1,000 balance is still there in suspense account. Okay, so suspense entry is done. Now think about this. Sales return credit करना है. Okay, in short, sales return आपने जो दिखाया वो सही है क्या, नहीं है। तो आपने गलत सेल्स रिटर्न दिखाया तो क्या होना चाहिए, ऐड। तो ऐड रॉन्ग सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न गलती से रिकॉर्ड हुआ था, मतलब माइनस किया था ना। अभी क्या करना है, आपको ऐड कर देना है, ठीक है। तो 1,500 ऐड हो जाएगा, ठीक है। 8,16,000 प्लस 1,500, इट इज़ 8,17,500, डन। एंड you have to record the purchase return we are going to record purchase return, मतलब क्या हो जाएगा आपका, नॉर्मली परचेस में से माइनस, परचेस रिटर्न है तो, ठीक है। तो माइनस एडिशनल परचेस रिटर्न। ओके, 1,500 एडिशनल परचेस रिटर्न है जो रिकॉर्ड होना चाहिए था, नहीं हुआ है। 6,80,500 माइनस 1,500, 6,79,000। Now next adjustment is expenses include 3,750 relating to the period after 31st March 2022. This is very simple adjustment regarding prepaid expenses. We have already seen that the effect of prepaid expenses, normal expense में से minus करना है और asset में लिखना है. Okay, so less from expense and asset, that is 3,750 expense में से minus, so less prepaid 3,750. Now directly outer because only one adjustment is there, so 3,750 minus करने के बाद 42,000 outer expense में से minus and asset prepaid expenses only 3,750. Two effects we have given, so it's completed. Now last adjustment, because this adjustment we have already seen
that there will be no effect of deferred revenue expenses. All the expenses of advertisement will be directly recorded into the profit and loss account. So this adjustment is already done. Now only last adjustment. Purchase book was overcast by 1000. Posting to the supplier account is correct. So there is no need to adjust the supplier account, only adjust the purchase account. तो परचेस ज़्यादा दिखा है तो उसको कम करना है, और वो प्रॉब्लम किधर कर रहा था, सस्पेंस में. सो बेसिकली परचेस में से माइनस एंड सस्पेंस में डेबिट. सस्पेंस में डेबिट मतलब सस्पेंस में से भी माइनस करना है. तो आपका सस्पेंस अकाउंट पूरा ज़ीरो हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्रायल बैलेंस टैली नहीं हो रहा था. तो सस्पेंस अकाउंट में से माइनस और परचेस में से भी माइनस. ओके, सो माइनस overcast purchases, minus overcast purchases, that is 1000. Okay, which was not a real purchase, but you have recorded the wrong purchases, that's why it is showing you the 1000, so it's nil. Okay, so minus from the purchases, it's 6,78,000. so final purchase amount we got 6,78,000, and here we have completed the entire trial balance and all the adjustment. Now just close your final account, so you will get to know that whether your balance sheet is correct or not. Okay, whether it is getting tally or not. So let's close your trading account first. Take a total of debit credit both, whichever amount is more we have to write here. Okay, so पहले हम लोग क्रेडिट ही ले लेते हैं. नॉर्मली क्रेडिट बड़ा होता है, इस क्वेश्चन में भी वैसे ही है. सो 8,17,500 प्लस 45,000, टोटल इज 8,62,500. ठीक है, आप चेक कर लेना. डेबिट बढ़ा है तो आप डेबिट लिखना पड़ेगा. ठीक है, बट आई नो दैट क्रेडिट इज मोर. ओके, माइनस 36,500 माइनस 6,78,000, इट इज़ 1,48,000. 1,48,000 का आपको क्या आ रहा है, ग्रॉस प्रॉफिट. क्रेडिट बढ़ा है मतलब ग्रॉस प्रॉफिट. सो यहाँ पे GP कैरिड डाउन, डेबिट क्रेडिट. ओके, कैरी फॉरवर्ड करना है. GP ब्रॉट डाउन 1,48,000. ठीक है, नाउ ड्यू टू दिस 2 लाख प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड बढ़ा आने वाला है. ठीक है, चलो तो इसका हम लोग डेबिट का ही पहले ले लेंगे, क्योंकि हमको लॉस होने वाला है. यहाँ पे दिख रहा है सीधा. चलो 42,000 प्लस 2 लाख प्लस 13,500, इट इज़ 2,55,500. 2,55,500 माइनस 1,48,000 माइनस 5,750. ओके, तो अपना लॉस कितना आ रहा है, 1,01,750 का लॉस आ रहा है. ठीक है, बाय नेट लॉस. ओके, एंड वी नो दैट नेट लॉस वी आर गोइंग टू डिडक्ट फ्रॉम योर कैपिटल अकाउंट. ठीक है, इसीलिए एक स्पेस एक्स्ट्रा छोड़ा था ना. सो यहाँ पे माइनस करना है नेट लॉस, जो आया है अपना 1,01,750. ओके, सो यहाँ पे हो क्या रहा है, देखो यहाँ पे अगर मैंने माइनस कर दिया तो हो क्या रहा है, मैं आपको सब बता दूंगी, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए. 86,000 इज़ द कैपिटल माइनस लॉस अगर आपने किया तो ये निगेटिव में जा रहा है. ओके, कैपिटल नॉर्मली निगेटिव में नहीं जाना चाहिए. ओके, नॉर्मली we have seen that if profit is there, net profit, so we will add it, net loss is there, we will deduct it. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्यों हो रहा है, एडवर्टाइजमेंट का जो हैवी एक्सपेंस है उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है. आपका बिजनेस एक तो स्मॉल है, उसमें कैपिटल कम है, और आपने एडवर्टाइजमेंट का हैवी एक्सपेंस किया है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा है. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पे नेट लॉस रिकॉर्ड नहीं करेंगे. ठीक है, नेट लॉस हम लोग उल्टे साइड में मतलब असेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, ताकि कैपिटल निगेटिव ना हो. ओके, सो नेट लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. ओके, उल्टे साइड में रिकॉर्ड किया तो भी वही इफेक्ट आने वाला है, 750. ओके, एग्जाम में अगर आपने भी ऐसा मिस्टेक किया तो आप भी कट करके यहाँ पे लिख सकते हो. ठीक है, ताकि आपका टैली बराबर से हो जाए और कोई प्रॉब्लम भी ना आएगा. ठीक है, तो यहाँ पे अपना P&L तक ख़त्म हुआ है. अभी खाली आपको बैलेंस शीट टैली करना है. चलो तो बैलेंस शीट टैली करते हैं. पहले हम लोग चेक करेंगे लायबिलिटी साइड. लायबिलिटी साइड का टोटल देखो, यहाँ पे आपका ये कैपिटल आ जाएगा बाहर,
ठीक है, यही कैपिटल आपका बाहर आ गया। ठीक है, या क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे एडजस्टमेंट नहीं कर पाए तो हम लोग उसको बाहर लेके आए। 86,000 प्लस 3,44,000, इट इज़ 4,30,000। लाइबिलिटी साइड का आ रहा है 4,30,000। चलो असेट साइड का चेक करते हैं। 1,21,500 प्लस 95,000 प्लस 8,000 प्लस 55,000 प्लस 45,000 प्लस 3,750 प्लस 1,01,750, 1,0750। ओके, सब मिला के 4,30,000। सो फाइनली यहाँ पे मिस्टर अभय का बैलेंस शीट टैली हुआ है, उसका सस्पेंस अकाउंट भी हट गया है, उसके सारे एडजस्टमेंट्स बराबर हुए हैं, ट्रायल बैलेंस करेक्ट हुआ है, सारे आइटम्स रिकॉर्ड हो गए हैं। तो यहाँ पे उसका जो भी प्रॉब्लम था ट्रायल बैलेंस में अपना ख़त्म हुआ है, क्योंकि सस्पेंस अकाउंट ख़त्म करना ही अपना अल्टीमेट एम था। ओके, सो दिस एम इज़ अचीव दैट हिज सस्पेंस अकाउंट इज़ नील नाउ एंड इज बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, एवरीथिंग इज़ करेक्ट। ओके, and he is getting loss in profit and loss account due to this advertisement expenses. Okay, so here we have completed illustration number 6. If you found this video helpful, then please like the video, do share with your friends, subscribe my channel and press the bell icon to get more updates, and please check my channel playlist to get more videos on various topics, and also join the Telegram group and stay connected with the channel, because after the question number 6, 7, there are the advanced question in this sole trading concern which comes in exam. So please stay connected to the channel to get the more and more questions in easy way. Thanks for watching, friends.